Today we are going to start our lecture number 7 of the course Fundamentals of Programming. Let's have a look what we are going to study today. In today's lecture we are completely going to cover all kind of loops, those are decision control statements. In loops, as we discussed earlier, we have two types of loops, that is, one is iterative loops and the other one is the conditional loops. Iterative loop is the one in which we already, as a programmer, we already know that our instructions are going to run or repeatedly run for how much number of times. Means we exactly know the number of iterations for which our loop is going to circulate. But in while loop and do while loop, those loops are called conditional loops. In conditional loops, they depend on some condition. According to the condition, our program will decide to continue the statement of repetition, or we need to stop. It can be 1 time, 2 time, or can be 100 times. We cannot predict it earlier or before execution. So we already covered the iterative loop, that was the for loop. But before going to jump directly to the while loop, let's have a little bit background of the for loop. Okay, so let's start our for loop. In for loop, first we see the syntax. What is our syntax program? In for loop we have the syntax something like this. We need to use the keyword for. In the for small brackets, in the small brackets we need to define three main parts of our for loop. First is the initialization of our counter, that we need to count the number of iterations we are going to repeat the statement's execution. So first the initialization part, counter initialization, then the condition part, and on which condition we need to continue the execution or for which condition we need to stop. And second and the last one is the increment, that we need to increment our counter after each iteration. After that we need to use some curly brackets, but curly brackets are not mandatory. If you are going to execute only one statement under the for loop, then you don't need to use the brackets. If you want to, you can, but it is not mandatory. If you want to use or execute multiple statements under this for loop, then it is mandatory for you to use these brackets. So there can be multiple number of statements. इसकी एग्जीक्यूशन का सीक्वेंस क्या होगा? दैट इज़ इनिशियलाइजेशन इज़ गोइंग टू बी एग्जीक्यूटेड ओनली वंस. ये सिर्फ और सिर्फ एक दफ़ा पहले एग्जीक्यूट होगी और उसके बाद से दोबारा इनिशियलाइजेशन पे ये वापस नहीं आएगा आपका कंट्रोल. उसके बाद शिफ्ट कर जाएगा कंडीशन पे. अगर कंडीशन ट्रू है तो ये नीचे शिफ्ट कर जाएगा, आपकी सारी स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करेगा, और स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करने के बाद कहाँ शिफ्ट करेगा? इंक्रीमेंट पे इंक्रीमेंट करेगा, और इंक्रीमेंट के बाद आपके पास दोबारा कहाँ शिफ्ट करेगा? अगेन कंडीशन पे. कंडीशन स्टिल ट्रू है, आफ्टर इंक्रीमेंट कंडीशन अभी भी अगर ट्रू है तो ये दोबारा हम स्टेटमेंट्स पे आ जाएंगे, स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करेंगे, और ये इस साइकिल के अंदर एग्जीक्यूशन आपकी कॉन्टीन्यूसली चलती रहेगी. कब तक चलती रहेगी? जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती. जैसे ही कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तब आपका कंट्रोल इस फॉर को, इस यहाँ जितनी भी स्टेटमेंट्स लिखी हुई उन सारी स्टेटमेंट्स को स्किप करेगा और स्किप करके आगे मूव कर देगा. So this is the basic syntax of our for loop. Let's have some examples. Okay, let's consider this example, that is, for example, write a program that displays the cube of the numbers from 1 to 10. 1 से लेके 10 तक हमारे पास जो नंबर्स होते हैं उन नंबर्स का हमने क्यूब डिस्प्ले करना है अपनी स्क्रीन पे. अब आपके पास द क्वेश्चन इज़ वाई वी नीड लूप्स इन दिस प्रोग्राम. हमें एक प्रोग्राम में लूप की क्यों ज़रूरत है? हमें पता है कि हमें 1 से लेकर 10 तक सारे नंबर्स का क्योंकि क्यूब कैलकुलेट करना है, तो बजाय इसके कि हम एक एक नंबर का अलग अलग क्यूब कैलकुलेट करें और बार बार उसकी कैलकुलेशन करें, हम एक बार क्यूब कैलकुलेट करने वाली फार्मूला एक बार सिर्फ लिखेंगे और उस प्रोसेस को रिपीट कर देंगे उन 10 नंबर्स के लिए यूजिंग लूप. तो हमारे पास इस तरीके से हमारा काम ईजी हो जाएगा. So how we are going to do this? We are going to do it something like this. हमारे पास ये प्रोग्राम है. We started our program. हमने प्रोग्राम स्टार्ट किया. फर्स्ट हमारे पास कितने वेरिएबल्स रिक्वायर्ड हैं? हमें वो नंबर्स चाहिए जिन नंबर्स के लिए हम क्यूब कैलकुलेट कर रहे हैं, एंड देन हमें उनका क्यूब सेव करने के लिए भी हमें कोई वेरिएबल रिक्वायर्ड है. सो वी क्रिएटेड 2 वेरिएबल्स. आप ये डायरेक्टली भी कर सकते हैं. ये भी हो सकता है कि आप क्यूब का वेरिएबल कैलकुलेट डिक्लेयर ना करें और डायरेक्टली उसको स्क्रीन पे प्रिंट करवाते जाएं. सो इट्स अप टू यू. हमें ये प्रोसेस कितनी बार रिपीट करना है? हमें ये 10 के लिए 10 लाइंस के लिए ये प्रोसेस रिपीट करना है. 1 से स्टार्ट करना है और जब तक 10 के इक्वल है तब तक हमें ये रिपीट करना है.
सो हम एक फॉर लूप यूज़ कर लेते हैं। फॉर के अंदर नंबर को हमने इनिशियलाइज़ करना है, स्टार्ट करना है मीन, तो स्टार्ट हम किसे करेंगे 1, सो नंबर इज़ इक्वल टू 1 सेमीकोलन। उसके बाद हम कंडीशन देंगे कि हमने कब तक करते रहना है, जब तक नंबर लेस देन इक्वल टू 10 है, जब तक 10 से लेस है या फिर एटलीस्ट इक्वल है तब तक ये चलता रहे। जैसे ही ये 10 से बड़ा हो उसके बाद ये खुद को स्टॉप कर दे। आफ्टर कंप्लीटिंग वन लाइन हम नंबर में कितने का इंक्रीमेंट कर रहे हैं, सिर्फ 1 का इंक्रीमेंट करते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया नंबर प्लस प्लस कि ये आफ्टर कंडीशन चेकिंग और आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ वन आइट्रेशन ये खुद को एक इंक्रीमेंट कर दे। ये सारा कुछ करने के बाद हम किस तरीके से, अब हम लोगों ने मेन काम पे आ जाते हैं कि फॉर ईच लाइन हमने क्या कुछ करना है। सबसे पहले हमने क्या कर दिया, दैट इज़ हमने नंबर डिस्प्ले कर दिया और उसके रिस्पेक्टिव, और नंबर जब डिस्प्ले करने लगे थे तो हमने सेट विड्थ का फंक्शन भी यूज़ कर लिया ताकि हमारी फॉर्मेटिंग प्रोग्राम हमारा जो डिस्प्ले आए वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट आ जाए। सी आउट सेट डब्ल्यू 4 हमने 4 डिजिट्स के लिए अपने पास स्पेस रख ली, और क्योंकि हमने यहाँ लेफ़्ट नहीं का कीवर्ड नहीं यूज़ किया तो इसका मतलब ये ऑटोमेटिकली राइट अलाइन होगा। तो सेट डब्ल्यू 4 हमने 4 प्लेसेस ले ली, 4 प्लेसेस के अंदर हमने क्या डिस्प्ले किया, नंबर डिस्प्ले करवा दिया। नंबर की वैल्यू क्या थी, दैट वाज 1, तो आपकी स्क्रीन पे 1 आ गया। उसके बाद हमने 1 का क्यूब कैलकुलेट करना है। क्यूब हमें क्या पता, हमें कैसे पता है कि क्या होता है क्यूब कैलकुलेट करने का ईजीएस्ट फार्मूला क्या है कि आप उसी को 3 टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई कर दें किसी भी नंबर को तो उसका क्यूब कैलकुलेट हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने उसी नंबर को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया है, नंबर मल्टीप्लाई बाय नंबर मल्टीप्लाई बाय नंबर, और उसको सेव किस में कर लिया है, किसी क्यूब के वेरिएबल में सेव कर लिया जो हमने क्रिएट किया हुआ था। अब हमने ये जो कैलकुलेट किया है क्यूब, इसको हमने स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाना है। तो हमने सी आउट लिखा, सी आउट लिखने के बाद हमने क्या किया, सेट डब्ल्यू 6 हमने क्यूब की, ऑब्वियसली क्योंकि नंबर क्यूब में होगा तो बड़ा नंबर होता जाएगा, तो हमने 6 लोकेशंस मैक्सिमम रख ली हैं, और 6 लोकेशंस के अंदर हमने सेट डब्ल्यू यूज़ किया हुआ और लेफ़्ट नहीं यूज़ किया तो ऑटोमेटिकली राइट अलाइन होगा। और उसमें हमने फिर क्या डिस्प्ले करवा दिया, जो भी क्यूब की वैल्यू कैलकुलेट हुई है। नंबर इनिशियली 1 है तो 1 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा तो भी 1 ही रहेगा, तो क्यूब की वैल्यू भी 1 होगी जो स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगी, जैसे यहाँ हो रही है कि तो 1 नंबर डिस्प्ले हुआ, क्यूब कैलकुलेट हुआ और वो फिर आपके पास क्यूब डिस्प्ले हो गया। उसके बाद एंड हेल है, एंड हेल की वजह से ये नेक्स्ट लाइन में आ गया। नेक्स्ट लाइन में आने के बाद अब कहाँ जाएगा, यहाँ तो हमने सिर्फ एक नंबर के लिए कैलकुलेशन की हुई है। क्यों एक नंबर के लिए की हुई है, क्योंकि हम लूप के थ्रू इसको रिपीट कर सकते हैं। तो ये इसके बाद कहाँ चला जाएगा, नम प्लस प्लस पे, नंबर खुद को इंक्रीमेंट करेगा, नंबर की वैल्यू हो जाएगी 2, फिर कंडीशन चेक होगी, येस 2 इज़ लेस देन और इक्वल टू 10, तो ये आपके पास कंडीशन ट्रू है। फिर ये अंदर आ गया, फिर उस नंबर को डिस्प्ले किया, नंबर को डिस्प्ले करने के बाद उसका क्यूब कैलकुलेट किया और क्यूब को डिस्प्ले कर दिया, एंड सो ऑन। ये प्रोसेस हमने 10 नंबर्स के लिए रिपीट कर दिया। तो इस तरीके से हमारे पास बना, अगर हम लूप्स ना यूज़ करते तो ये जो हमारे पास 3 लाइनें लिखी हुई हैं, ये 3 इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं, ये 3 इंस्ट्रक्शंस हमें 10 टाइम्स रिपीट करनी पड़ती, 10 टाइम्स हमें लिखनी पड़ती, जो ऑब्वियसली एक अच्छी प्रोग्रामिंग अप्रोच नहीं होगी। ओके, नाउ कंसीडर अनदर एग्जांपल फॉर द फॉर लूप। हमारे पास लेट सपोज हम एक ऐसा प्रोग्राम बनाना चाहते हैं जो ये पर्टिकुलर आउटपुट डिस्प्ले करे। आपसे कहा गया है कि ये प्रोग्राम क्रिएट करें जो ये पर्टिकुलर आउटपुट डिस्प्ले करता हो। अब इसको किस तरीके से हम फॉर लूप से रिलेट कर सकते हैं। फॉर लूप से आप अपने पास इस तरीके से रिलेट कर सकते हैं कि इसमें कौन सी वो लाइंस हैं जो रिपीट हो रही हैं, जो सेम है। तो हम इसमें देख सकते हैं कि आपके पास फर्स्ट लाइन इज़ डिफरेंट देन अदर, नेक्स्ट लाइन, पहली लाइन डिफरेंट है सेकंड से, तो ये तो एक लूप में नहीं हो सकती, मतलब हम ये लाइन रिपीट नहीं कर रहे, तो ये तो हमने अलग से सी आउट करवा दी। उसके बाद आपके पास सेकंड एंड थर्ड लाइन का जो पैटर्न है, ये पैटर्न 3 दफ़ा रिपीट हो रहा है, यहाँ पे भी वही रिपीट हो रहा है और ये वाला पैटर्न फिर रिपीट हो रहा है। इट मीन्स कि ये जो आपके पास सी आउट की इंस्ट्रक्शन होगी, सेकंड लाइन वाली और थर्ड लाइन वाली, उन 2 इंस्ट्रक्शंस को हमने 3 दफ़ा रिपीट करवाना है और उसके बाद दोबारा एक दफ़ा हम लोगों ने ये प्रिंट करवा देना है। तो जो रेपिटिशन का काम है वो हम यूजिंग फॉर लूप करवा सकते हैं। कैसे करवाएंगे, समथिंग लाइक दिस। हमने सिंपली फर्स्ट टाइम क्या सी आउट करवा दिया, जो ऊपर इंस्ट्रक्शन है दैट इज़ प्लस वाली लाइन है वो हमने सी आउट करवा दी। उसके बाद जो आपके पास 2 लाइनें हैं वो 3 दफ़ा रिपीट हो रही हैं, तो उनको 3 दफ़ा रिपीट करने के लिए हमने लूप लगा लिया। लूप कहाँ से स्टार्ट किया, 1 से। कब तक चलेगा, जब तक कि वो लेस और इक्वल टू 3 नहीं है हो जाता, जब तक लेस देन इक्वल टू 3 है तब तक उससे हमने रिपीट करवाते रहना है। एंड देन हर लाइन के बाद इंक्रीमेंट किस तरह करना है, 1 का इंक्रीमेंट करना है। अब यहाँ पे आप ये देखें कि 1 का इंक्रीमेंट का क्या मतलब है, क्योंकि 1 का इंक्रीमेंट विद रिस्पेक्ट टू दिस 3 है कि टोटल 3 दफ़ा चलना है, 1 दफ़ा, लेकिन उस 1 दफ़ा के अंदर 2 लाइंस एग्जीक्यूट होंगी।
फिर दूसरी दफ़ा के अंदर फिर 2 लाइन्स एग्जीक्यूट होंगी, फिर तीसरी दफ़ा और तीसरी दफ़ा के अंदर भी 2 लाइन्स एग्जीक्यूट होंगी कि उसके अंदर भी हमने 2 सी आउट की इंस्ट्रक्शंस को यूज़ किया हुआ है। यहाँ पे सिर्फ जो चीज़ आपको नोट करने की ज़रूरत है कि हमने यहाँ पे एक एस्केप सीक्वेंस भी यूज़ किया हुआ है। वो क्यों यूज़ किया हुआ है? क्योंकि हम अगर बैकस्लैश सिंपल यूज़ कर लें तो वो डिस्प्ले नहीं होता। अगर हमने बैकस्लैश स्क्रीन पे शो करना हो तो हमें डबल बैकस्लैश लगाना पड़ता है, क्योंकि बैकस्लैश सिंगल इटसेल्फ एज अ एस्केप सीक्वेंस यूज़ हो जाता है। तो अगर आपने बैकस्लैश को स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाना है तो आप उसके लिए डबल बैकस्लैश को यूज़ करेंगे। सो दिस वॉज ऑल अ गुड इनफ इंट्रोडक्शन ऑफ द फॉर लूप। हमने फॉर लूप को पहले भी कवर किया हुआ लास्ट वीक में, तो हमने थोड़ा सा आज कवर कर लिया है। अब स्टार्ट करते हैं विद आवर नेक्स्ट लूप, दोज आर दी कंडीशनल लूप्स। लेट्स कम विद द फर्स्ट कंडीशनल लूप, दैट इज़ वाइल लूप। वाइल लूप आपके पास पहला कंडीशनल लूप है जिसको हम कवर करेंगे। जैसे इसके नाम से पता चल रहा है, वाइल लूप डिपेंड करेगा किसी न किसी कंडीशन के ऊपर कि जब तक, वाइल मीन्स होता है दैट इज़, जैसे हम उर्दू में कहते हैं जब तक ये कंडीशन ट्रू है तब तक आप रिपीट करते रहो। जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाए उसके बाद स्टॉप कर देना। वो कंडीशन कोई पहले से प्री डिफाइंड नंबर्स के लिहाज से भी हो सकती है, जैसे हम फॉर में कर रहे थे कि कोई कंडीशन जब तक ट्रू थी तो वो चल रहा था, जब कंडीशन गलत होती थी तब वो रुक जाता था। लेकिन और इसके अलावा एक और मेथड, इसका फ़ायदा क्या है कि हम ये कंडीशन यूज़र डिफाइंड भी बना सकते हैं। मींस जब तक यूज़र कोई नंबर प्रेस नहीं करता तब तक चलता रहे, यूज़र जब तक कोई डिजिट प्रेस नहीं कर रहा तब तक चलता रहे, यूज़र जब तक येस कह रहा है तब तक ये रिपीट होता रहे, या यूज़र जब तक नो कह रहा है तब तक ये दोबारा शो करता रहे। सो इट कैन कम विद द यूज़र डिफाइंड कंडीशन। ज़रूरी नहीं है कि ये प्री डिफाइंड कंडीशन हो, ये कोई यूज़र डिफाइंड कंडीशन भी हो सकती है। मींस आपके पास वो सारा काम जो हम वाइल लूप से फॉर लूप से कर रहे थे वो भी हम वाइल लूप से कर सकते हैं, लेकिन वाइल लूप ज़्यादा अप्रोप्रिएट तब होगा जब ये उन कंडीशंस के लिए यूज़ किया जाएगा जो यूज़र डिफाइंड होंगी। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपने सिंटेक्स से कि वाइल का सिंटेक्स क्या होगा, वाइल को कैसे लिखा जाएगा। जिस तरीके से आपके पास फॉर के अंदर 3 पार्ट थे, दैट वाज इनिशियलाइजेशन, कंडीशन एंड इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, इसमें भी उसी तरीके से 3 ही पार्ट्स होंगे, सिर्फ उनकी जगह बदल जाएगी कि किस इंस्ट्रक्शन को हमने कहाँ पे मेंशन करना है। इनिशियलाइजेशन ऑब्वियसली सबसे पहले होगी। वाइल लूप आप जब भी स्टार्ट करने लगे हैं तो उसके अंदर जो भी कंडीशन है उस कंडीशन के रिस्पेक्टिव आपको जो भी इनिशियलाइजेशंस करनी है, जो वैल्यूज़ रिक्वायर्ड हैं वो आपने सबसे पहले स्टार्ट कर देनी है। तो इनिशियलाइजेशन का काम आपका लूप स्टार्ट होने से पहले हो जाएगा। इट कैन बी इमीडिएटली बिफोर, कि उससे फ़ौरन पहले भी हो सकता है, या फिर काफ़ी शुरू में भी जब आपका प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है, द स्टार्टिंग पॉइंट भी आप इसको मेंशन कर सकते हैं। देन उसके बाद आपके पास आएगा वाइल का कीवर्ड। वाइल के कीवर्ड के बाद आएंगी ब्रैकेट्स, और ब्रैकेट के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन आएगी। कंडीशन का क्या मतलब होता है कि ऐसी कंडीशन जो आइदर ट्रू होती है या फॉल्स होती है। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो वो वाइल के बाद की स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करेगा, उसकी ब्रैकेट्स के अंदर आ जाएगा। वाइल के बाद हम ब्रैकेट्स के अंदर उसी तरीके से अपनी स्टेटमेंट्स मेंशन कर देंगे। जितनी भी स्टेटमेंट्स कंडीशन ट्रू होने के केस में एग्जीक्यूट होनी है वो स्टेटमेंट्स रन होंगी, और रन होने के बाद आपके पास लास्ट पॉइंट क्या होगा, दैट वाज इंक्रीमेंट के हमने एक बार आइट्रेशन कर ली है, एक बार अपनी स्टेटमेंट्स को रन कर लिया है, तो अब हमने अपने काउंटर को इंक्रीमेंट कर देना है। इंक्रीमेंट करने के बाद आपका कंपाइलर कहाँ जाएगा, वापस दोबारा कंडीशन के ऊपर। अगर कंडीशन ट्रू होगी वो अंदर आ जाएगा, एग्जीक्यूट करेगा। अगर आपके पास कंडीशन दोबारा इंक्रीमेंट करेगा, फिर दोबारा कंडीशन पे जाएगा, और ये इस साइकिल के अंदर कॉन्टीन्यूसली मूव करता रहेगा। कब तक मूव करता रहेगा, वाइल, जब तक कंडीशन इज़ ट्रू, जब तक कंडीशन ट्रू है वो करता रहेगा। व्हेन द कंडीशन इज़ फॉल्स, जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी ये पूरा का पूरा पार्ट, ये पूरी की पूरी वाइल लूप की जो बॉडी है उसको स्किप करके उससे नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे मूव कर जाएगा। सो इट्स क्वाइट सिंपल। हम इसको एग्जांपल्स के थ्रू देख लेते हैं कि ये किस तरीके से काम करता है। ओके, लेट्स टेक दिस फर्स्ट एग्जांपल। आपके पास एग्जांपल ये है कि आपने यूज़र से कहना है कि वो कोई नंबर प्रेस करता रहे, और आप वो तब तक नंबर प्रेस कर सकता है जब तक कि वो 0 प्रेस नहीं करता। जैसे ही वो 0 प्रेस करेगा उस टाइम पर हमने उसको स्टॉप कर देना है। उसके अलावा वो कोई भी नंबर अगर प्रेस कर रहा है, सो वी वांट टू कंटिन्यू इट, हम उसे आगे कंटिन्यू करना चाह रहे हैं। आपके पास फर्स्ट टाइम वाइल की कंडीशन को ट्रू बनाने के लिए सम टाइम कुछ इनिशियलाइजेशंस ऐसी करनी पड़ती हैं ताकि पहली दफ़ा कंडीशन ट्रू हो, उसके बाद तो वो यूज़र डिपेंडेंट है कि यूज़र क्या प्रेस करता है। मैंने एक वेरिएबल बना दिया जिसके अंदर यूज़र डाटा इंसर्ट करेगा।
अब उसके अंदर मैंने 99 वैल्यू क्यों डाली है? इसके अंदर आप कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं अदर देन ज़ीरो, क्योंकि ज़ीरो एक ऐसी कंडीशन है जिसके ऊपर लूप चलेगा नहीं और वो फर्दर वैल्यूज़ यूज़र से नहीं लेगा। तो हमें ज़ीरो के अलावा कोई वैल्यू डालनी पड़ेगी, क्योंकि ज़ीरो के ऊपर तो हमने स्टॉप करना है। तो हमें यहाँ पे कोई ऐसी वैल्यू डालनी पड़ती है जिसके लिहाज से कंडीशन ट्रू हो। हमने उसके बाद कंडीशन क्या लगाई हुई है? वाइल जब तक n इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, जब तक n ज़ीरो नहीं हो जाता तब तक ये करते रहो। क्या करते रहो? सी इन n के लिए कीबोर्ड से वैल्यू लेते रहो। जब तक ज़ीरो नहीं हो जाता तब तक कीबोर्ड से वैल्यू लेते रहो। सो दिस कैन बी वन ऑफ योर मेथड, जहाँ जिसको यूज़ करते हुए आप अपने यूज़र को इन्फोर्स कर सकते हैं फॉर अ पर्टिकुलर वैल्यू। लेट सपोज आपने यूज़र से कहना है कि यूज़र ने मस्ट 5 ही प्रेस करना है, उसके अलावा कोई ऑप्शन अगर वो प्रेस कर रहा है तो वो गलत कर रहा है, तो उसको अगर बार बार आपने कहना है कि वो प्रेस कर रहे नंबर जब तक वो 5 प्रेस नहीं करता, तो आप इस तरह का कोड यूज़ कर सकते हैं। So we declared a variable and we initialized it with a value of 99. Then we applied a condition that while जब तक n is not equal to 0 n 0 नहीं हो जाता, take the input from the user से डाटा लेके इस n वेरिएबल में डाले। n वेरिएबल में डाटा डालेगा, उसके बाद आपके पास while क्या की, यहाँ पे नोट करें हमने कोई ब्रैकेट्स यूज़ नहीं की, बिल्कुल फॉर की तरह इसमें भी जब अगर आपके पास ब्रैकेट्स नहीं है, इसका मतलब है वाइल के अंदर सिर्फ एक इंस्ट्रक्शन इसके साथ लिंक्ड है, तो ये सिर्फ एक इंस्ट्रक्शन को रन करेगा और दोबारा फिर कंडीशन पे आ जाएगा, फिर एक इंस्ट्रक्शन को रन करेगा, फिर कंडीशन पे आ जाएगा, फिर एक इंस्ट्रक्शन को रन करेगा और कंडीशन पे आ जाएगा, और यहीं पे ये इस लूप में घूमता रहेगा जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। तो जैसे ही यहाँ पे कंडीशन यूज़र n में फॉर एग्जांपल 0 प्रेस कर देता है, n में 0 चला गया, तो कंडीशन क्या हो जाएगी? फॉल्स। 0 इज़ नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन फॉल्स, वो तो 0 हो चुका है। कंडीशन फॉल्स होने की वजह से ये बाहर आ जाएगा। एंडल की वजह से हमें सिर्फ फ़ायदा क्या हो रहा है कि ये लास्ट 0 के बाद भी थोड़ी सी स्पेस दिखा रहा है हमारी आउटपुट में, और उसके बाद हमने अपने प्रोग्राम को एंड कर दिया है। सो फर्स्ट टाइम आपने जो इनिशियलाइजेशन करनी है वो माइंड में अपने रखना है कि वो इनिशियलाइजेशन इसलिए रिस्पेक्टिव होनी चाहिए कि आपकी कंडीशन फर्स्ट टाइम के लिए ट्रू हो, ताकि वो उस लूप के अंदर जा सके और अंदर जाने के बाद वो उसके रिस्पेक्टिव कोई वैल्यू ले सके। सो वी डिफाइंड अ वेरिएबल, वी अप्लाइड अ लूप, दैट इज़ वाइल लूप, जिसके अंदर हमने कंडीशन बता दी कि ये 0 नहीं होना चाहिए, एंड टुक सम इनपुट फ्रॉम द यूज़र एंड कंटिन्यूड एज लॉन्ग एज यूज़र वांट्स टू एंटर एनीथिंग अदर देन 0। तो आपके पास ये प्रोग्राम अगर आपसे को कोई बताए कि ये कितनी दफ़ा चलेगा, तो आप बीइंग प्रोग्रामर पहले से नहीं बता सकते कि ये लूप कितनी दफ़ा चलेगा, क्योंकि हमें तो नहीं पता यूज़र क्या एंटर करेगा। हमें नहीं पता कि वो पहली दफ़ा ही 0 हो सकता है एंटर कर दे, हो सकता है कि वो आगे 100 वैल्यूज़ तक भी 0 एंटर ना करे, कुछ और नंबर्स एंटर करता रहे, उसकी 0 की ही ख़राब हो, कभी भी एंटर ना करे। सो कैन बी डिफरेंट ऑप्शंस, पॉसिबिलिटीज़ जो इसमें हो सकती हैं, इसी वजह से इसको कंडीशनल लूप कहा जाता है। ओके, just to relate it with the example of the for loop, we have the next example similar to our for loop example. Write a program that print out the table of 2 using while statement, कि हमने 2 नंबर का टेबल प्रिंट करना है, जैसे हम लोगों ने अपनी लास्ट डिस्कशन क्लास में किया था कि हमने एक पर्टिकुलर किसी भी नंबर के लिए टेबल प्रिंट कर रहे थे यूजिंग फॉर लूप। अब हम वही करें कि हम किसी भी पर्टिकुलर नंबर के लिए तो नहीं करें, हम फिक्स 2 नंबर के लिए क्या प्रिंट करना चाह रहे हैं, टेबल प्रिंट करना चाह रहे हैं, दैट इज़ 1 to 10 तक का, लेकिन हम किसके थ्रू करना चाह रहे हैं? यूजिंग वाइल लूप। ऑल्दो अब इस क्वेश्चन के लिए अप्रोप्रिएट क्या है, क्या फॉर लूप यूज़ करें, लेकिन ये काम हम वाइल लूप से भी करवा सकते हैं। हम ये लूप वाइल लूप से हम ये कैसे करवाएंगे? सॉरी, ओके, दिस इज़ द वन। हमने ये प्रिंट करवाना है, हमने पर्टिकुलरली जिस तरीके से हम लोग अपनी लास्ट एक्टिविटी में टेबल प्रिंट करवाए थे, हम उस तरीके से नहीं करवाया हुआ। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो 2 के टेबल के नंबर्स आते हैं, दैट इज़ 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन, हम वो प्रिंट करवाना चाह रहे हैं। सो फर्स्ट वी इनिशियलाइज्ड आवर नंबर विद 1। अब ये नंबर 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इट एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग दी आइट्रेशंस, कि कितनी बार हमने ये रिपीट करना है। हमने कितनी बार रिपीट करना है? 10 टाइम्स रिपीट करना है। तो हमने 1 से स्टार्ट किया है इसको, और अपने पास कंडीशन वाइल के अंदर क्या कंडीशन लगाएंगे कि ये जब तक 10 से लेस है, वाइल नंबर इज़ लेस देन इक्वल टू 10, तब तक इसने ये काम करना है। क्या काम करना है कि जिस भी वेरिएबल के अंदर 2 पड़ा हुआ है, उसके लिए उसको मल्टीप्लाई करना है किससे? अपने नंबर के साथ, जो आइट्रेशन चल रही है उसके साथ, और उसको किसी वेरिएबल में सेव करके प्रिंट करवाते जाना है। So we have multiple variables here, one for the counter,
1 फॉर द रिजल्टेंट जो रिजल्टेंट वैल्यू बन रही है, एंड 1 फॉर सेविंग द नंबर 2 जिसका हमने टेबल प्रिंट कराना है। वाइल नंबर 1 इज़ लेस दैन इक्वल टू 10, जब तक कंडीशन जो है ट्रू है, जब तक ये लेस दैन इक्वल टू 10 है, तब तक क्या करे, 2 को मल्टीप्लाई करता जाए पर्टिकुलरली जो भी अभी नंबर चल रहा है उसके साथ, उसको किसी वेरिएबल में हम सेव करवाते जा रहे हैं और सेट डब्ल्यू के फंक्शन के थ्रू हमने उसे प्रिंट करवाते जा रहे हैं। तो हमारी स्क्रीन पे ये 2 4 6 8 ये सारे के सारे नंबर्स प्रिंट होते जाएंगे। आफ्टर ईच एग्जीक्यूशन, आफ्टर ईच कैलकुलेशन, जैसे हमने 2 स्क्रीन पे प्रिंट करवा लिया है फर्स्ट नंबर, तो फ़ौरन हमने उसके बाद क्या करना होगा, द लास्ट स्टेटमेंट शुड बी इंक्रीमेंट, कि हमने नंबर को इंक्रीज़ करना है बिफोर मूविंग टू द कंडीशन। कंडीशन पे जाने से पहले हमने क्या करना है, अपने काउंटर को इंक्रीमेंट करना है ताकि काउंटर इंक्रीमेंट हो जाए और उसके बाद वो फिर कंडीशन पे चला जाए और एग्जीक्यूट करे। तो ये इस लूप के अंदर बार बार एग्जीक्यूट होता रहेगा अनलेस कि ये लेस दैन 10 है। जैसे ही ये 10 होगा तो आपके पास 10 के लिए तो ये चलेगा, उसके बाद जैसे ही उसके बाद नंबर प्लस प्लस होगा तो ये 11 हो जाएगा, 11 के लिए कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और आपका प्रोग्राम लूप से बाहर निकल आएगा, रिटर्न 0 की वजह से प्रोग्राम एंड हो जाएगा और आपकी पर्टिकुलर आउटपुट आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगी। Okay, before moving to some other examples, let's have a look for a library function that is getch and getche. ये functions आपके लिए helpful होते हैं for taking input। जिस तरीके से आपके पास cin का function है वो किसी भी data type की input के लिए use होता है। अगर आपने अपने user के लिए से सिर्फ इनपुट लेनी है, दैट इज़ ओनली अ 1 कैरेक्टर, सिर्फ और सिर्फ एक कैरेक्टर लेना है, फॉर एग्जांपल A B N या 1 2 3 या फिर आपके कीबोर्ड पे जैसे और कोई भी सिंबल बना हुआ है, आपने सिर्फ एक कैरेक्टर लेना है। आप कोई स्ट्रिंग्स नहीं लेना चाह रहे, पूरा नाम नहीं लेना चाह रहे या कुछ और नहीं लेना चाह रहे, ओनली 1 कैरेक्टर यू वांट टू टेक एज इनपुट। तो उसके लिए आपके पास कुछ बिल्ट इन लाइब्रेरी के फंक्शंस होते हैं जो होते हैं दैट इज़ getch और getche। ये जो लास्ट ई है, इट कैन दिस फंक्शन वर्क्स विद इट एंड विदाउट इट। आप ई रख भी सकते हैं और ई को रिमूव भी कर सकते हैं। एक्चुअली ई का मतलब होता है इको। अगर आपने ई लिखा हुआ है तो इसका मतलब है जो भी कीबोर्ड से यूज़र प्रेस करेगा वो आपकी आउटपुट की स्क्रीन पे भी नज़र आएगा। लेट्स सपोज मैंने ए प्रेस किया है तो स्क्रीन पे ए लिखा हुआ नज़र आएगा, मैंने बी प्रेस किया है तो बी लिखा हुआ नज़र आएगा। लेकिन अगर आपने ई नहीं मेंशन किया हुआ तो आपकी स्क्रीन पे कुछ भी लिखा हुआ नज़र नहीं आएगा, लेकिन वो आपके वेरिएबल के अंदर डाटा चला जाएगा। सो यू कैन यूज़ दीज 2 फंक्शंस फॉर टेकिंग इनपुट फ्रॉम द यूज़र। ये फंक्शन दोनों आपके पास बेसिकली कुछ सी की लाइब्रेरीज़ के फंक्शन है। इसके लिए आपको कुछ हेडर फाइल्स इंक्लूड करनी पड़ेंगी। दैट हेडर फाइल इज़ conio.h। conio.h की हेडर फाइल के अंदर ये फंक्शंस की डेफिनेशन मौजूद है। मीन्स अगर आपने ये फंक्शन यूज़ करना है तो ऊपर ये हेडर फाइल इंक्लूड करनी पड़ेगी। इस फंक्शन के अंदर ब्रैकेट्स के अंदर कोई भी डाटा इनपुट नहीं लिया जाता। इससे जो भी आउटपुट मिलती है, मीन जो भी कीबोर्ड से वैल्यू मिल रही है, वो इसके पीछे इक्वल करके वेरिएबल का नाम जो लिखेंगे तो वो उस वेरिएबल में चली जाएगी। सो इट ओनली टेक्स इनपुट फ्रॉम द कीबोर्ड और उसके बाद उस को हम किसी भी वेरिएबल के अंदर को असाइन कर सकते हैं या वेरिएबल के अंदर सेव कर सकते हैं। अब हम इसको डिफरेंट प्रोग्राम्स ऑफ आर वाइल लूप यूज़ करके देखते हैं कि इसका यूजेज कहाँ पे हो सकता है। लेट्स कंसीडर दिस एग्जांपल। हम लोगों ने यूज़र से पूछना है कि यूज़र कंटिन्यू करना चाह रहा है या वो स्टॉप करना चाह रहा है। सो व्हाट वी डिड समथिंग लाइक दिस कि हम लोगों ने अपने पास किया, हमने एक कैरेक्टर वेरिएबल बना लिया ch। Want to continue प्रेस येस और नो। हमने यूज़र को ऑप्शन देनी है कि वो वाई प्रेस करे या एन प्रेस करे। वाई इज़ फॉर येस कि अगर हाँ वो कंटिन्यू करना चाहता है, और नो प्रेस करने के लिए एन प्रेस कर दे कि वो एग्जीक्यूट नहीं करना चाहता। तो नॉर्मली हम कैसे यूज़र से इनपुट लेते हैं, हम लिखते हैं सी ch। तो ये सीन यूज़ करने की वजह से डिफरेंट कीबोर्ड से आप अगर बहुत सारे कैरेक्टर्स भी एंटर कर देते हैं तो भी वो उसका कोई ना कोई कन्वर्जन बना के इसमें डाल देगा जो करेक्ट या आपके पास अप्रोप्रिएट नहीं है। अगर आपने सिंगल कैरेक्टर के लेना है तो उसके लिए आपके पास ज़्यादा अप्रोप्रिएट क्या होगा कि आप इस सी की लाइन की जगह क्या यूज़ करें, ch इज़ इक्वल टू getche की वजह से आपकी स्क्रीन पे जो भी यूज़र प्रेस करेगा वो नज़र आएगा। जैसे नीचे छोटी सी आपका आउटपुट स्क्रीन में नज़र आ रहा है कि y लिखा हुआ है, मीन्स यूज़र ने y प्रेस किया है तो आपकी स्क्रीन पे y लिखा हुआ है। अगर आप e नहीं लिखेंगे तो यूज़र y प्रेस करेगा, वो y वैल्यू ch में भी चली जाएगी, बस सिर्फ आपकी स्क्रीन पर इको नहीं होगा, मीन्स स्क्रीन पर डिस्प्ले नहीं होगा। सो आपको चाहिए कि आप बजाय जब आपने सिंपल एक कैरेक्टर के ऊपर काम करना हो तो आप ये वाला फंक्शन भी यूज़ कर सकते हैं, विच इज़ मोर अप्रोप्रिएट।
Okay, let's consider this example. We want to take the direction from the users. हम यूज़र से डिफरेंट डायरेक्शंस लेना चाह रहे हैं कि यूज़र कहाँ मूव कर रहा है. आपके पास जैसे आप लोगों को ग्राफ्स का आइडिया होगा कि ग्राफ्स में हम डिफरेंट डायरेक्शंस में मूव करते हैं. आपके पास एक 4 प्लेन ग्राफ है, उसके अंदर आपकी इनिशियल पोजीशन है 10-10 की लोकेशन के ऊपर एक यूज़र एग्जिस्ट कर रहा है और उस लोकेशन से इनवर्ड्स आपने कहीं पे भी मूव करना है. इस टाइप का एक आपने मॉडल टाइप सॉफ्टवेयर क्रिएट करना है, तो हमने उसके लिए ये प्रोग्राम लिखा है. हमने यूज़र से कहा है प्रेस डायरेक्शन की, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, कि वो कहाँ मूव करना चाहता है, वो अपनी डायरेक्शन बताए. या वो N प्रेस करेगा या S प्रेस करेगा, E प्रेस करेगा या फिर W प्रेस करेगा. तो अगर उसको जो अभी हमने यूज़र से डायरेक्शन ली है तो सीन में के थ्रू हमने उससे यूज़र से डायरेक्शन ले ली. डायरेक्शन लेके हमने चेक कर दिया कि इफ़ डायरेक्शन इज़ इक्वल टू N, अगर वो नॉर्थ उसने प्रेस किया है तो हमने नॉर्थ की वजह से उसका Y इंक्रीमेंट कर दिया है. सिमिलरली एल्स अगर उसने साउथ प्रेस किया है तो भी हमने Y मूव कर दिया है. अगर उसने ईस्ट या वेस्ट प्रेस किया हुआ है तो उसके लिए हमने क्या किया है, हमने उसके एक्स कोऑर्डिनेट को मूव करवा दिया है, क्योंकि ऑब्वियसली या वो हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा होगा या फिर वो वर्टिकली मूव कर रहा होगा. और आफ्टर मूवमेंट हमने क्या डिस्प्ले करवा दिया है, उसकी अपडेटेड लोकेशन डिस्प्ले करवा दिया है. सो दिस इज़ योर सिंपल प्रोग्राम फॉर टेकिंग और मूविंग इन डिफरेंट डायरेक्शंस विद रिस्पेक्ट टू योर पर्टिकुलर प्लेन. हम इस प्रोग्राम के लिए अंदर getch कैसे यूज़ कर सकते हैं कि अब आपके पास यही प्रोग्राम है, लेकिन ये क्या हो रहा है कि ये सिर्फ एक दफ़ा आपके पास यूज़र से इनपुट ले रहा है और उसके बाद स्टॉप कर जाता है. अब जो प्लेयर जो है, अगर आप गेम जैसे बनाना चाह रहे हैं तो प्लेयर तो बार बार मूव करना चाहेगा, तो उसको बार बार मूव करवाने के लिए या उसकी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए हमें ये सारा का सारा कोड किस में शिफ्ट करना पड़ेगा, इनटू अ वाइल लूप, कि वो इसी लूप में शिफ्ट करना पड़ेगा ताकि हमें पता चल सके कि वो बार बार अगला स्टेप क्या ले रहा है, अगला स्टेप क्या ले रहा है. तो वो आगे जितने स्टेप्स लेना चाहता है उतने स्टेप्स के लिए हमें लूप अप्लाई करना पड़ेगा. हमने क्या किया कि हम लोगों ने अपने पास एक डायरेक्शन का वेरिएबल बना लिया जो हम पहले भी हमारे पास था, और अब हमने यूज़र से पूछ लिया कि टाइप एंटर टू क्विट. हमने सिर्फ ये कह दिया है कि ये यूज़र जब स्टॉप करना चाहे वैसे वो मूवमेंट करता रहे, और जब वो स्टॉप करना चाहे तब वो क्या प्रेस कर दे, एंटर प्रेस कर दे. एंटर के लिए जो की यूज़ की जाती है दैट इज़ \R. अगर यूज़र ने एंटर किया है, एंटर प्रेस किया है और वो हमने किसी वेरिएबल में सेव कर लिया है, तो हम कैसे चेक कर सकते हैं कि यूज़र ने एंटर प्रेस किया है, दैट इज़ कि उसने जो भी डायरेक्शन मूव की है वो \R तो नहीं है. अगर उसने \R नहीं है तो इसका मतलब है उसने एंटर प्रेस नहीं किया, वो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट में से कुछ प्रेस करना चाह रहा है. तो वो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट में से जो प्रेस करना चाह रहा है वो हमने getch के थ्रू उसकी डायरेक्शन ले ली, और डायरेक्शन लेके हमने उसको पर्टिकुलरली उसके रिस्पेक्टिव उसको मूव करवाया. मूव करवाने के बाद दोबारा हमने उसकी अपडेटेड लोकेशन प्रिंट करवाई, और लोकेशन प्रिंट करवाने के बाद हमने फिर से चेक कर लिया कि उसने अब जो डायरेक्शन एंटर की थी वो कहीं \R तो नहीं थी. \R अपेरेंटली आपको ये 2 कैरेक्टर लग रहे होंगे, लेकिन इसमें जो बैकस्लैश है ये एज अ एस्केप सीक्वेंस काम करता है, तो एक्चुअल में ये \R कंबाइंड एक सिंगल कैरेक्टर है. तो ये \R दोबारा यूज़र ने जो भी प्रेस किया, NSEW प्रेस किया, तो ये कंडीशन ट्रू होगी. कंडीशन ट्रू होने की वजह से अंदर आ जाएगा, दूसरी दोबारा यूज़र से लेगा, एंड कंटिन्यूड वो यूँ चलता जाएगा और आपके पास डिफरेंट डायरेक्शन में आपका यूज़र मूव करता जाएगा. तो आप इस तरीके से अपनी डायरेक्शन को हैंडल कर सकते. Okay, now let's talk about our next conditional loop, that is do while loop, which is very similar to the while loop, but there is a very major difference, one major difference between while and do while loop. There is only one difference between while and do while, otherwise they are both the same loops. Obviously, because it's a loop, the purpose is to execute some instructions again and again for a particular time, and that time depends on some conditions. While the condition is true, we are going to repeat our instructions, but how it is going to work, it is little bit different. Okay, so the do while is a repetition statement, as I already said, so it is similar to while statement. In the while statement, the loop condition test occurs at the beginning of the loop before the body of the loop executes. In the do while statement, the test and the loop conditions after loop body executes, therefore the loop body always executes at least once. The major difference, जिस तरीके से मैंने पहले भी कहा था कि आपके पास लूप वाइल एंड डू वाइल में सिर्फ एक डिफरेंस है, वो ये डिफरेंस है कि वाइल के अंदर पहले कंडीशन चेक होती है, अगर कंडीशन ठीक है तो वो वाइल लूप के बॉडी के अंदर आएगा और स्टेटमेंट्स का एग्जीक्यूट करेगा,
कुछ स्टेटमेंट्स में चेंजेस आएंगी, उसके बाद फिर कंडीशन चेक करेगा फॉर द नेक्स्ट टाइम उसको रन करना है या नहीं करना वो चेक करने के लिए। लेकिन डू वाइल के अंदर पहले स्टेटमेंट्स को वो एग्जीक्यूट करता है फॉर द फर्स्ट टाइम, पहले वो स्टेटमेंट्स को रन करेगा, आफ्टर द स्टेटमेंट्स देन वो कंडीशन चेक करेगा, अगर कंडीशन ट्रू है तो वो सेकंड टाइम के लिए जाएगा, और अगर कंडीशन फॉल्स है तो वो आगे चला जाएगा। सो इट मीन्स दिस लूप इज़ वेरी सूटेबल फॉर द सिचुएशन इन विच वी वांट टू एग्जीक्यूट एट लीस्ट वंस। ऐसी सिचुएशन जिनमें हमने एट लीस्ट एक दफ़ा तो ज़रूर ही अपने लूप को रन करना ही करना होता है, इन स्टेटमेंट्स को, पर्टिकुलर स्टेटमेंट्स को रन करना ही करना है। आफ्टर वन टाइम एग्जीक्यूशन तब हमने चेक करना है कि दोबारा उसे रन करने की ज़रूरत है या नहीं है, तो उसके लिए फिर वो वाइल के थ्रू कंडीशन चेक करेगा। सो फर्स्ट वी विल अप्लाई डू आपके पास एक कीवर्ड है, उसके बाद आप मस्ट क्या यूज़ करेंगे, ये कर्ली ब्रैकेट्स यूज़ करेंगे। कर्ली ब्रैकेट्स के दरमियान में आपके पास मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस हो सकती हैं जिनको आप रिपीट करना चाहते हैं। उसके बाद जहाँ आपकी ब्रैकेट क्लोज हो रही है उसके फ़ौरन बाद आप लिखेंगे वाइल, और वाइल के बाद आप क्या मेंशन करेंगे, कंडीशन। अनदर विद रिस्पेक्ट टू सिंटेक्स जो चीज़ आपको याद रखनी है वो ये रखनी है कि डू वाइल लूप के अंदर वाइल के आगे सेमीकोलन लगता है, क्योंकि डू वाइल यहाँ पे एंड हो रहा होता है। सिंपल वाइल में वाइल से स्टार्ट हो रहा होता है और उसके नीचे उसकी स्टेटमेंट्स होती हैं, इसलिए कोई सेमीकोलन नहीं लगता। लेकिन डू वाइल के अंदर डू से स्टार्ट हो रहा है, सारी स्टेटमेंट्स को रन कर रहा है, और उसके बाद वाइल के ऊपर, कंडीशन के ऊपर, क्योंकि वो एंड हो रहा है तो इस वजह से इसके आगे सेमीकोलन ज़रूर लगाना पड़ता है हमें। सो दिस इज़ आवर बेसिक डू वाइल लूप। The conditional expression appears at the end of the loop, so the statements in the loop execute once before the condition is tested. तो एक दफ़ा ज़रूर आपकी statements रन हो जाती हैं, उसके बाद condition test होती है। If the condition is true, the flow control jumps back up to the do and the statements in the loop executes again. The process repeats until the given condition becomes false. So अगर आपके पास कंडीशन ट्रू होती है तो ये दोबारा डू पे शिफ्ट कर जाता है, उसके सारी स्टेटमेंट्स को रन करता है एंड देन वाइल की कंडीशन चेक करता है, एंड सो ऑन। इस तरीके से ये इस लूप को आगे कंटिन्यू करेगा। This is the flow chart of our do while loop. In simply do we are going to have the block of statements first. पहले आपके पास वो block of statements हैं, वो स्टेटमेंट्स रन होने के बाद क्या चेक होती है, दैट इज़ कंडीशन। अगर कंडीशन फॉल्स है तो वो सिंपली प्रोग्राम में आगे चला जाएगा, लूप में वापस नहीं जाएगा। अगर कंडीशन ट्रू है तो वो दोबारा उस ब्लॉक पे वापस चला जाएगा और उन स्टेटमेंट्स को दोबारा रन करेगा, फिर कंडीशन पे आएगा। सो अब आपके पास अगर हम इसको रिलेट करना चाहें विद रिस्पेक्ट टू आवर फॉर लूप और वाइल लूप, तो इनिशियलाइजेशन कहाँ करेंगे, हम इनिशियलाइजेशन अपने डू से पहले करेंगे। डू से पहले जो भी आपने इनिशियलाइजेशन करनी है आप वो कर सकते हैं। इवन जो डू का अपना ब्लॉक है आप उसमें भी इनिशियलाइजेशन कर सकते हैं, क्योंकि उसने एक बार तो वो चलना ही चलना है। तो आपके पास जो भी इनिशियलाइजेशन होंगी वो उसके अंदर होंगी। इनिशियलाइजेशन के बाद जो भी चेक होगा, जो कंडीशन होगी, जो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होगा, वो भी कहाँ पे होगा, इसी से ब्लॉक के डू के ब्लॉक के अंदर होगा। उसके बाद फाइनल में एंड पे आपके पास वाइल और उसकी कंडीशन आ जाएगी। डू वाइल लूप एक्चुअल वर्क कैसे करता है हम लोगों ने इसको गो थ्रू कर लिया है। दैट इट एग्जीक्यूट एक्शन, इफ़ कंडीशन इज़ ट्रू देन एग्जीक्यूट एक्शन अगेन। यहाँ पे एक्शन का मतलब है दैट पर्टिकुलर स्टेटमेंट्स जो आप एग्जीक्यूट या रन करना चाह रहे हैं। रिपीट दिस प्रोसेस अंटिल द कंडीशन इवेलुएट्स टू फॉल्स। एक्शन इज़ आइदर अ सिंगल स्टेटमेंट और ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स विद इन ब्रेसेस। Okay, let's take some examples. First example is we want to write a program to print numbers from 10 to 20 using do while loop. So how we can do it? We can simply do this program by initializing a variable. We have a variable, for example a, or can be considered as the counter. We initialize its value with the 10 because we want to start from the 10. हम 10 से शुरू करना चाह रहे हैं, तो इस वजह से हमने इसको 10 से initialize कर दिया है। Then we come to the do while part. In do हमने एक्चुअली एग्जीक्यूट क्या करना है, हमने सिंपली वो जो नंबर काउंटर है उसको प्रिंट करना है और इंक्रीमेंट कर लेना है, एक अगले पे चले जाना है, क्योंकि 10 के बाद 11 आएगा, फिर 12 आएगा और तब तक चलता रहेगा जब तक वो 20 से लेस है। सो हमने डू के अंदर क्या कर दिया, जो भी ए की वैल्यू थी उसको स्क्रीन पे डिस्प्ले करवा दिया, सी आउट करवा दिया, एंड आफ्टर दैट वी इंक्रीमेंटेड द वैल्यू। आप a=a+1 भी लिख सकते हैं, a++ भी लिख सकते हैं। और ये काम करवाने के बाद हमने क्या चेक कर दी, अपनी वाइल की कंडीशन, क्योंकि हमने किसी कंडीशन पे उसको स्टॉप करना है
कंडीशन कब स्टॉप करना है, जब वो लेस देन इक्वल टू 20 हो जाएगा, क्योंकि अगर आप 20 भी प्रिंट करवाना चाह रहे हैं तो आपको क्या चाहिए कि आप इसके अंदर इक्वल लगाएं, और अगर आप इक्वल नहीं लगाते तो ये कहाँ तक चलेगा, 19 तक डिस्प्ले करेगा। सो हमारे पास ये इनिशियलाइज़ होगा, एक दफ़ा 1 तो ज़रूर प्रिंट करेगा, उसके बाद फिर कंडीशन चेक करेगा कि क्या वो 20 से 10, मतलब फर्स्ट टाइम वो 10 ज़रूर प्रिंट करेगा, उसके बाद कंडीशन चेक करेगा कि क्या वो 20 से लेस है, यस वो लेस है तो वो दोबारा डू में वापस आ जाएगा और इस लूप में एग्जीक्यूट होता रहेगा। और हमारे पास इसकी पर्टिकुलर आउटपुट क्या आ जाएगी, कुछ इस तरह की हमारे पास आउटपुट आ जाएगी, दैट इज़ 10, 11, 12 एंड सो ऑन टिल 19। क्योंकि मैंने कंडीशन में लेस देन के साथ इक्वल नहीं लगाया हुआ, तो इस वजह से इक्वल ना होने की वजह से ये 19 तक प्रिंट कर रहा है। जब 20 वैल्यू हो जाती है तो 20 पे कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और ये बाहर आ जाएगा। लेट्स कंसिडर अनदर एग्जाम्पल। Second example can be a program to add numbers until user enter 0। हम चाह रहे हैं कि यूज़र डिफरेंट नंबर्स एंटर करे और उन सारे नंबर्स को हम सम करते जाएं। कब तक ये करते रहें, जब तक कि यूज़र 0 नहीं प्रेस कर देता। फॉर एग्जांपल यूज़र प्रेस 3, ओके 3, देन यूज़र प्रेस 2, सो 3 + 2 = 5, देन यूज़र प्रेस्ड 1, सो 5 + 1 = 6। और ये चीज़ हमें प्रोसेस कंटिन्यू करें, कब तक कंटिन्यू करें कि जब तक यूज़र 0 नहीं प्रेस कर देता, और जैसे वो 0 प्रेस करे हम उसको स्टॉप कर देंगे। सो वी इनिशियलाइज्ड अ वेरिएबल दैट इज़ नंबर एंड सम। एक हमें यूज़र से हर दफ़ा नंबर लेना है और जो वो नंबर देगा उसे हमने सम के अंदर ऐड कर देना है। तो हमने एक वेरिएबल बना दिया नंबर का और एक सम का। हमने सम को इनिशियली 0 से इनिशियलाइज़ कर दिया क्योंकि इनिशियली उसमें कोई वैल्यू नहीं है। देन वी अप्लाइड अ डू वाइल लूप। डू के अंदर हमने क्या किया, यूज़र से कहा एंटर अ नंबर, यूज़र ने एक नंबर एंटर किया और जो भी यूज़र ने नंबर एंटर किया वो हमने किस में ऐड करवा दिया है, सम के अंदर। यहाँ हमने अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ किया है क्योंकि हम जो भी एडिशन कर रहे हैं वो दोबारा सम में ही सेव करना चाह रहे हैं। तो आप सम = सम प्लस नंबर भी लिख सकते हैं या फिर डायरेक्टली सम प्लस = नंबर भी लिख सकते हैं। तो हमने सम के अंदर इस नंबर को ऐड करवा दिया और उसके बाद हमने चेक कर लिया कि यूज़र ने 0 तो प्रेस नहीं किया था, क्योंकि अगर 0 प्रेस किया था तो तब हमने उसको स्टॉप करना है। सो आवर वाइल कंडीशन इज़ वाइल नंबर इज़ नॉट इक्वल टू 0.0, क्योंकि हमने डबल डाटा टाइप रखी हुई है जो फ्लोटिंग टाइप की होती है, तो इसलिए हमने यहाँ पे 0.0 रखा हुआ है कि जब तक यूज़र 0.0 प्रेस नहीं कर रहा तब तक वो कंटिन्यू करे। यूज़र से बार कंडीशन 0 नहीं होगी दोबारा नंबर लेगा, सम में ऐड करेगा, 0 नहीं होगी दोबारा नंबर लेगा, फिर ऐड करेगा। एक टाइम आएगा जब यूज़र 0 प्रेस कर देगा, उस टाइम पे ये कंडीशन आपके पास जो है वो फॉल्स हो जाएगी और फॉल्स होने की वजह से ये लूप में से बाहर आ जाएगा। बाहर आके जो भी टोटल सम हमारा कैलकुलेट हुआ है हम वो सम डिस्प्ले करवा देंगे और हमारा इस तरीके से प्रोग्राम कंप्लीट हो जाएगा और कुछ इस तरीके की हमारे पास आउटपुट आ जाएगी। ओके, लेट्स टेक अनदर एग्जांपल फॉर आवर डू वाइल लूप। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। इसमें हम लोग वी वांट टू राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर, कि एक नंबर का अगर फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है तो वो हम डू वाइल से कैसे कर सकते हैं। फैक्टोरियल की कैलकुलेशन हमें पता है कि फॉर एग्जांपल अगर हमने 4 का फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है तो इट विल बी 4 × 3 × 2 एंड × 1 एंड सो ऑन। इसी तरीके से किसी भी नंबर का अगर हमने फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है तो वो अपने पिछले सारे नंबर से मल्टीप्लाई होता है। हम इसको इस तरीके से भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि हमने 1 से स्टार्ट करना है, सो 1 × 2 × 3 × सो ऑन टिल n, जहाँ पे भी जिस नंबर का करना है वहाँ तक के जितने नंबर्स हैं उन सबको अगर हम आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास उसका फैक्टोरियल कैलकुलेट हो जाएगा। तो ये हम डू वाइल से कैसे कर सकते हैं। कंसिडर दिस प्रोग्राम, वी हैव अ वेरिएबल फॉर नंबर। हमारे पास एक वेरिएबल है नंबर के लिए, एक वेरिएबल है फैक्टोरियल कैलकुलेट करने के लिए, एंड ऑल्सो वी हैव अ वेरिएबल फॉर आवर काउंटर, कि हम अपने लूप के काउंटर को हैंडल कर सकें, उसके लिए भी हमने नंबर सेव रखा हुआ है। फर्स्ट वी आस्क फ्रॉम द यूज़र टू एंटर द नंबर, जिसका वो फैक्टोरियल कैलकुलेट करना चाहता है। सो वी राइट एंटर अ पॉजिटिव इंटीजर एंड वी took input in it, that is c in number। हमने इसके अंदर इनपुट ले ली है। उसके बाद हमने क्या कर दिया, वी इनिशियलाइज द वेरिएबल फैक्टोरियल विद 1, क्योंकि फैक्टोरियल की बेस 1 होती है, सम की बेस 0 होती है, तो हमने उसमें 0 रखा था। लेकिन फैक्टोरियल क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा होता है, अगर हम इसमें 0 रख देंगे तो ये किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई होकर उसको 0 कर देगा। तो फैक्टोरियल के लिए जब भी आप वेरिएबल बनाएं तो हमेशा उसको इनिशियलाइज़ आप किससे करेंगे, 1 से इनिशियलाइज़ करेंगे। काउंटर को अब हमने क्या करना है, 1 से लेके उस नंबर तक जो भी यूज़र ने एंटर किया वहाँ तक मल्टीप्लाई करना है। मीन्स हमने ये बार बार मल्टीप्लिकेशन का काम करना है, तो उसके लिए अब हम लूप लगाएंगे। लूप को हमने इनिशियलाइज़ काउंटर को किससे कर दिया, 1 से मल्टीप्लिकेशन शुरू करनी है।
डू क्या करो, फैक्टोरियल आपके पास जो भी काउंटर चल रहा है काउंटर को मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई किसके अंदर करके डाल दे, वो फैक्टोरियल के अंदर, जो भी हमने फैक्टोरियल का आंसर रखना है उसके अंदर डाल दे और काउंटर को इंक्रीमेंट करता जाए। वाइल तब तक ये काम करता रहे जब तक जो आपका काउंटर है वो उस नंबर के इक्वल नहीं पहुंच जाता, जब तक वो उससे लेस है, जब तक इक्वल है या उससे छोटा है या उसके बराबर नहीं हो जाता तब तक ये काम रिपीट करता रहे, और जैसे ही वो उससे बड़ा हो जाए तब वो स्टॉप कर दे। तो आपके पास यहाँ पे ये प्रोसेस रिपीट होता रहेगा। जो आपके पास डू वाइल का है कि वो आपके पास नंबर लेगा, 1 लेगा, 1 को मल्टीप्लाई करेगा, इनिशियली फैक्टोरियल में क्या पड़ा हुआ है वो भी 1 पड़ा हुआ है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेगा, काउंटर इंक्रीमेंट कर देगा, काउंटर की वैल्यू हो जाएगी 2 लेस देन नंबर है, लेट सपोज यूज़र ने 5 प्रेस किया था तो येस 2 इज़ लेस देन 5, तो ये दोबारा 2 में चला जाएगा। अब 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो फैक्टोरियल में 2 वैल्यू आ जाएगी, काउंटर फिर इंक्रीमेंट करेगा, काउंटर की वैल्यू 3 हो जाएगी, 3 स्टिल लेस देन इक्वल टू 5 है तो फिर दोबारा डू में चला गया, डू में गया तो फैक्टोरियल में क्या आ चुका था 2 मल्टीप्लाई बाय 3 हुआ, ये हो गया 6, फैक्टोरियल में 6 आ गया और काउंटर प्लस प्लस होके 3 से 4 हो गया। तो काउंटर चलता रहेगा फॉर काउंटिंग के जब तक हम उस नंबर तक नहीं पहुंच जाते, और फैक्टोरियल में मल्टीप्लिकेशन होके ऐड होती रहेगी, मल्टीप्लिकेशन होके मीन्स सेव होती रहेगी आपके इस फैक्टोरियल वेरिएबल में। तो जब आपके पास हम उस नंबर पे रीच करेंगे तो आपके पास फैक्टोरियल कैलकुलेट हो चुका होगा, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और हम इससे बाहर जंप कर जाएंगे। बाहर आके जब हम इसको डिस्प्ले करवाएंगे तो हमारे पास उस नंबर का फैक्टोरियल डिस्प्ले हो जाएगा और आपके पास कुछ इस तरीके की पर्टिकुलर आउटपुट स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगी। सबसे पहले एंटर अ पॉजिटिव इंटीजर, यूज़र से हमने कहा कि वो नंबर एंटर करे, फॉर एग्जांपल 5 एंटर किया, तो उसके बाद आपके पास फैक्टोरियल कैलकुलेट हुआ यूजिंग लूप और आपके पास ये फैक्टोरियल स्क्रीन पे डिस्प्ले हो गया। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, एक और एग्जांपल देख लेते हैं कि हमारे पास ये कैसे काम करेगी। फॉर एग्जांपल वी वांट टू कैलकुलेट द पावर ऑफ 2, हम डू वाइल को यूज़ करते हुए 2 नंबर की डिफरेंट पावर्स कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। वो पावर 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, वो यूज़र डिफाइंड होगी कि यूज़र क्या पावर कैलकुलेट करना चाह रहा है, मीन्स 2 की पावर 2, 2 की पावर 5, 2 की पावर 10 या कुछ भी। 2 की जो भी पावर होती है हम इसका मीनिंग ये होता है कि वो उतने टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई करेगा। 2 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मतलब है 2 की पावर 10 है। अगर 2 की पावर 5 है तो इसका मतलब है 2 को हमने 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो इसी कॉन्सेप्ट को रखते हुए हम अपने प्रोग्राम की लॉजिक क्रिएट करते हैं। हमने एक नंबर रख लिया जिस नंबर दैट इज़ गोइंग टू बी योर पावर, जो पावर के लिए यूज़ होगा। सेकंड इज़ रिज़ल्ट, जो आपके पास फाइनल आंसर आएगा, एंड द काउंटर, जो हमें लूप को हैंडल करने के लिए उतने टाइम्स मल्टीप्लाई करने के लिए हमें हेल्प करेगा। एंटर अ पॉजिटिव इंटीजर, यूज़र से हमने एक नंबर पूछ लिया जो वो एंटर करना चाह रहा है, जो पावर है 2 इज़ द बेस, 2 को हमने कांस्टेंट रखा हुआ है, जो पावर है उसको हमने डायनामिक रखा हुआ है कि वो यूज़र की चॉइस के मुताबिक होगा, तो हमने वो यूज़र से ले लिया। उसके बाद हमने कर दिया कि रिज़ल्ट को इनिशियली 1 से इनिशियलाइज़ कर दिया, क्योंकि आपके जो भी लॉजिक, जो भी प्रोग्राम जिसमें मल्टीप्लिकेशन हो रही हो तो उसको हमेशा आप 1 से इनिशियलाइज़ करेंगे, 0 से इनिशियलाइज़ नहीं करेंगे, क्योंकि अगर 0 से इनिशियलाइज़ किया तो वो मल्टीप्लिकेशन की वजह से पूरा आंसर 0 कर देगा। तो हमें हमेशा इसके लिए जो वैल्यू रखनी पड़ेगी वो 1 रखनी पड़ेगी, तो हमने इसको 1 से इनिशियलाइज़ किया। अब हमने अपना लूप स्टार्ट करना है, तो लूप स्टार्ट करने के लिए हमने काउंटर को किससे इनिशियलाइज़ कर दिया, 1 से इनिशियलाइज़ किया और हमने अपने लूप में शिफ्ट हो गए। लूप में क्यों गए, क्योंकि हमें इस नंबर तक बार बार 2 को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो हमने इसके अंदर क्या रख दिया कि रिज़ल्ट इज़ इक्वल टू रिज़ल्ट मल्टीप्लाई बाई 2 या रिज़ल्ट मल्टीप्लाई बाई इज इक्वल टू 2, और उसके बाद काउंटर को इंक्रीमेंट कर दिया। अब हमें ये 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई करवाते रहना है, जब तक हमारा काउंटर उस नंबर के बराबर नहीं पहुंच जाता, जब तक वो उससे छोटा है या जब तक उसके इक्वल नहीं है, इक्वल है तब तक वो चलता रहे, जैसे ही वो इस नंबर से बड़ा हो तो वो स्टॉप कर देगा। तो आपके पास जब तक ये कंडीशन ट्रू है 2 उतने टाइम्स मल्टीप्लाई होता रहेगा। जब ये लूप ख़त्म होगा तब आपके पास हमारे पास वो पर्टिकुलर पावर कैलकुलेट हो चुकी होगी और हम उसे स्क्रीन पे डिस्प्ले कर देंगे। सो ओके, दिस वाज आवर लेक्चर। और हमारे आज के लेक्चर में जो टॉपिक्स मेन कवर हुए दैट इज़ फॉर लूप, वाइल लूप एंड डू वाइल लूप। फॉर लूप इज़ आइट्रेटिव लूप, जिसमें हम फिक्स नंबर ऑफ आइट्रेशंस के लिए रन करते हैं, फेवरेबली उसके लिए रन करते हैं। आप चाहें तो उसको भी सिंपली कंडीशन बेस्ड भी बना सकते हैं। सिमिलरली आपके पास नेक्स्ट आ जाते हैं कंडीशनल लूप, जिसमें वाइल और डू वाइल लूप हैं। वाइल और डू वाइल लूप मेजरली किसी कंडीशन पे बेस करते हैं। वो कंडीशन यूज़र डिफाइंड होती है या यूज़र डिफाइंड हो सकती है कि यूज़र की मर्ज़ी है कि वो आगे कितनी बार इस प्रोसेस को चलाता रहे।
देन वी कम विद डू वाइल लूप। वाइल और डू वाइल का मेन डिफरेंस क्या है? सिर्फ डिफरेंस ये है कि वाइल में पहले कंडीशन चेक होती है, फिर आपका एग्जीक्यूशन होती है, आपका एक्शन परफॉर्म होता है, एंड सेकंड आइटरेशन के लिए भी फिर पहले कंडीशन चेक होती है, एंड सो ऑन, वो चलता रहता है। लेकिन इन डू वाइल लूप पहले वो एग्जीक्यूशन करेगा फॉर द फर्स्ट टाइम, एक बार ज़रूर एग्जीक्यूशन कर लेगा आपके एक्शन की, और उसके बाद फिर वो कंडीशन चेक करेगा फॉर द सेकंड टाइम, ये जानने के लिए कि दूसरी बार मुझे रन करना है या नहीं करना, उसके लिए वो उस कंडीशन को चेक करेगा। डू वाइल के लिए बेस्ट अप्रोप्रिएट जो आपके पास एग्जांपल हो सकती है कि आपका यूजेज कहाँ है डू वाइल का, दैट इज़ फॉर द मेन्यू बेस्ड प्रोग्राम्स। कि आप जब भी कोई ऐसा सॉफ्टवेयर बनाओगे, कोई ऐसा प्रोग्राम बनाओगे जिसमें अपने यूज़र को मेन्यू देना है, जैसे हम लोगों ने लास्ट क्लास में कैलकुलेटर बनाया था कि 1 फॉर एडिशन, 2 फॉर सब्ट्रैक्शन, 3 फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड 4 फॉर डिवीजन। तो हमने यूज़र को 4 ऑप्शंस देनी थी। उसने एक बार एक्शन परफॉर्म कर लिया, तो वो अब दोबारा परफॉर्म अगर करना चाहता है तो वो उसके लिए फिर हम कंडीशन लगा देंगे डू वाइल की, कि डू की वजह से वो एक दफ़ा तो करवा देगा जो भी अरिथमेटिक ऑपरेशन है, सेकंड टाइम यूज़र अगर दोबारा अगर कोई अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहता है तो वो उसके लिए फिर वो कंडीशन चेक करेगा। अगर कंडीशन यूज़र ने कहा येस वो करना चाहता है तो उसे दोबारा डू पे ले जाएगा, और अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो वो उसे नेक्स्ट पे ले जाएगा। सो इन द कमिंग लेक्चर हम कुछ और एग्जांपल्स को कवर करेंगे रिगार्डिंग लूप्स। तब तक आप इस लेक्चर को अच्छे तरीके से कवर कर लें, जो भी आपके क्वेश्चंस हैं आप उनको नोट डाउन कर लें ताकि हम अपने डिस्कशन सेशन में उनको डिस्कस कर सकें। ओके, थैंक यू।